Hello students, welcome back. Children, in the second module that we have completed, we have studied three chapters. The first one, determinants of demand and the demand function. Then I told you about the elasticity of demand. And the chapter number 5, children, that we dealt in the last two lectures, it was related to estimate of demand and demand forecasting. Children, today's lecture, or coming two lectures, we'll be discussing with module number 3. It's known as the theory of production. Children, in your textbook, it could be having different chapters. This module 3 is divided into three different chapters. What I am going to do is I'm going to teach it as a single module. So, and the important concepts that we have here. Okay. The name of the module, children, is theory of production. Now, when we start with the theory of production, we'll just spend 5 minutes, children, to understand what exactly is the meaning of production. And a question that we had studied in our 12th standard, children, that is the features of different factors of production that we have, children. Achha. In general terms, children, what is production? Production could be manufacturing. Production is a process of changing the raw material into finished goods. It is a method by which the input is converted into output after processing it. But in economics, children, production means creation of utility. It could be making of goods, creation of goods, whether they are material or immaterial, but for the purpose of selling them in the market. मतलब प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है? प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना होता है बच्चों लोग. सिंपल से टर्म्स में बोला जाता है बच्चों लोग that production is nothing but the creation of utility. Now when we want to carry out the production, children, we actually have to involve 4 different factors of production. And as you all know that land, labor, capital and enterprise are the 4 different factors of production. Now in short, children, let's revise something that we studied last year. Land, children, first of all, how to define land. So anything which is available above the land, on the land, below the surface of the land is referred to as land. Now land, as you know, children, it's a gift of nature. We do not produce land, na? Iska supply हमेशा limited होता है, perfectly inelastic. It can neither be created nor destroyed. Indestructible powers होते हैं. Land cannot be physically shifted from one place to another place. That means it's an immobile factor. अच्छा, एक ही जमीन पे आप जब प्रोडक्शन करते जाओगे तो धीरे धीरे उसमें से मिलने वाले प्रोडक्ट्स डिमिनिश होते जाएंगे और अलग अलग जमीन के अंदर बच्चों लोग अलग अलग लेवल का फर्टिलिटी होता है. अच्छा, दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन होता है बच्चों लोग लेबर. नाउ हाउ डू यू डिफाइन लेबर? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी काइंड ऑफ मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स व्हिच आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ ह्यूमन फैक्टर, children, when animals they work in the farm, it's not called as labor, but when person will be holding that same plow, ना, हल जब पकड़ता है तो उसको हम लोग लेबर बुला सकते हैं. तो किसी भी टाइप का फिजिकल या मेंटल काम जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एंगेज किया जाता है उसको हम लोग लेबर बुलाते हैं. भी सबसे पहली बात, काम और काम करने वाला, इन दोनों को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते. सो वी से दैट लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर. चलो, लेबर को स्टोर नहीं किया जाता है. मतलब अगर आज आपने आज का काम नहीं किया तो फिर आप बोलोगे सर आज का काम मैं कल करूंगा. नहीं, वो कल का काम होता है. सो लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड. आप ये नहीं बोल सकते कि आज का काम मैं नहीं करूंगा, उसको मैं फ्रिज में रखता हूं, कल कर देता हूं उसको करके. नो, सप्लाई इज लिमिटेड. मतलब जो स्किल्ड लोग होते हैं बच्चों लोग, वो लिमिटेड में होते हैं. जैसे कि तुम लोगों को सीए की जरूरत है, तुम आईसीआई में फोन नहीं कर सकते कि लेगा हम लोगों को 150 सीए चाहिए रात को बना के सुबह तक भेज देना. नो, सालों लग जाते हैं बच्चों लोग, उनको ही पता है कितना लंबा टाइम जाता है. फिर लेबर के पास बच्चों लोग जो बार्गेनिंग पावर होता है वो बहुत वीक होता है. कि अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सर मेरे को मतलब मर्सिडीज में बैठ के घर पे जाने का एक अलग से केबिन चाहिए और हर महीने में मुझे 1 लाख रुपए अकाउंट में आना चाहिए. इतना बार्गेनिंग कर सकते हो? नहीं, वो 1 लाख रुपए में आपकी जगह पे वो लोग 4 जन को काम पे रखें. अच्छा, मैं ये नहीं बोल सकता कि सर आप मेरा पगार बढ़ा के नहीं दोगे तो मैं लेक्चर ही नहीं लूंगा, मैं लेक्चर के लिए आऊंगा ही नहीं. तो सर बोलेंगे ठीक है सर, मैं आपको अपने कार में से घर पे छोड़ के आता हूं. तो वीक बार्गेनिंग पावर. इनइलास्टिक सप्लाई. सप्लाई क्या होता है? इनइलास्टिक एंड डिफर्स इन एफिशिएंसी. मतलब लेबर बच्चों हेटेरोजेन. नो टू पीपल कैन परफॉर्म द सेम वर्क इन सेम मैनर. चिल्ड्रन, दे विल ऑलवेज डू इट डिफरेंटली. अच्छा, देन चिल्ड्रन द थर्ड वन, दैट्स द कैपिटल, मनी व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. कैपिटल में आपको पता है पहले हम लोग अपना पैसा बचा के रखते हैं, फिर आप उसको इकट्ठा करोगे और बाद में उसको इन्वेस्ट करते हो. इन्वेस्ट करने के बाद उसको कैपिटल बोला जाता है. तो मशीन्स और टूल्स को सप्लाई करने में कैपिटल की जरूरत पड़ती है. लेबर बच्चों लोग तभी अच्छे से काम कर सकते हैं जब कुछ कैपिटल उसके हाथ में रहेगा. सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के लिए आपको कैपिटल लगता है.
it will generate more employment, transport facilities आते हैं, and payments to factors of production. The class वाला आता है चलो, that's called an entrepreneur. It coordinates the factors of production. जैसे जो entrepreneur होता है चलो, he initiates the business, decision लेना होता है उसको, टेक्नोलॉजी का चॉइस करना है, नए प्रोडक्ट्स, नए मेथड्स, नए प्रोसेसेस, नए सर्विसेज और सबके सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका रिवॉर्ड पे करना है. जैसे लैंड को रेंट पे करते हैं हम लोग, लेबर को उसका वेजेस देंगे, ओके, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है. एक काम किसका होता है चलो, एंटरप्रेन्योर. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू समथिंग ऑफ आवर इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चिल्ड्रन जैसे हमने पढ़ा था कि लाइक डिमांड फंक्शन होता है, वैसे ही होता है प्रोडक्शन फंक्शन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन चिल्ड्रन? तो प्रोडक्शन फंक्शन explains the relationship between physical input and physical output. क्या बोला देखो, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप आता है वो किसके जरिए बताया जाएगा बच्चों हम लोगों को? इट्स एक्सप्लेन थ्रू प्रोडक्शन फंक्शन. व्हाट इट मींस कि लाइक एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हो सकता है बच्चों लोग, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी भी हो सकता है. सो हाउ डू यू एग्जैक्टली एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप? इसको लिखने का एक तरीका आता है बच्चों लोग, क्या? QX मतलब क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ कमोडिटी X इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ, और अंदर मैंने लिखा है बच्चों F1, F2, F3, Fn तक जा सकता है. इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी आता है बच्चों लोग, दैट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ कमोडिटी X वुड एक्चुअली बी अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. तो बच्चों जो QX लिखा गया ना, क्या लिखा गया? QX. ये क्या है बच्चों लोग? आउटपुट है. और ये जो है ना F1, F2, ये सब क्या होते हैं? ये इनपुट होते हैं. तो आप कितना इनपुट यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना आउटपुट मिलेगा चिल्ड्रन. सो QX का मतलब होता है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ कमोडिटी X, F का मतलब होता है फंक्शन, और F1, F2, F3 दिस स्टैंड फॉर फैक्टर इनपुट्स. तो F1 का मतलब आप लैंड पकड़ सकते हो, F2 मींस लेबर, F3 का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल. ओके, अभी प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है बच्चों लोग, इट विल बी बेसिकली इन द टू डिफरेंट टाइम जोन्स दैट वी हैव चिल्ड्रन. सो वी हैव प्रोडक्शन फंक्शन इन द शॉर्ट रन एंड देन वी हैव प्रोडक्शन फंक्शन इन द लॉन्ग रन. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ये इनिशियली हमने जब सुना था तो हम लोग क्या बोलते थे कि लाइक सर शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है कि मतलब एक साल से कम पीरियड होता है, लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड होता रहेगा. Here children, it could actually have a slightly different meaning. Short run का मतलब क्या होता है कि लाइक दो टाइप के इनपुट्स आते हैं चिल्ड्रन. एक होता है अपना फिक्स्ड इनपुट और एक होता है वेरिएबल इनपुट. फिक्स्ड इनपुट मतलब दे आर नॉट अवेलेबल फॉर चेंज, आप उनको बदल नहीं सकते हो. प्लांट एंड मशीनरी होता है चलो, लैंड एंड बिल्डिंग होता है. लेकिन वेरिएबल इनपुट्स जो होते हैं ना, वेरिएबल इनपुट्स दे आर अवेलेबल फॉर चेंज. मतलब आपको ज्यादा प्रोडक्शन करने के तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको ज्यादा रॉ मटेरियल, तो आप फटाक से मंगा सकते हो. तो शॉर्ट रन इज दैट पीरियड चिल्ड्रन वेयर वी कैन ओनली चेंज द वेरिएबल इनपुट्स. ओके, बट दिस फिक्स इनपुट्स आर गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. तो ऐसे टाइम पीरियड को हम लोग क्या बुला सकते हैं? वी कॉल इट एज शॉर्ट रन. जैसे 6 महीने के टाइम में आप एक नया प्लांट एंड मशीनरी खड़ा नहीं कर सकते, आप एक नया लैंड एंड बिल्डिंग परचेस नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन आप नया इलेक्ट्रिसिटी ला सकते हो, नया रॉ मटेरियल ला सकते हो. तो चलो 6 महीने को आप क्या बोलोगे? शॉर्ट रन पीरियड. लेकिन 8-9 महीने में आप एक नया प्लांट एंड मशीनरी भी बना सकते हैं, एक नया लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप ज्यादा रॉ मटेरियल भी बना सकते हो, तो उसको आप लॉन्ग टर्म बोलोगे. तो शॉर्ट रन पीरियड इज दैट पीरियड चिल्ड्रन जहां पे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और बाकी के फैक्टर्स क्या रहेंगे? वेरिएबल. और ये नीचे दिया हुआ है चलो व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन फंक्शन इन द लॉन्ग रन. तो लॉन्ग रन चिल्ड्रन ध्यान रखना, देयर आर नो फिक्स फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स आर गोइंग टू बी वेरिएबल. क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको पता है चलो कुछ भी परमानेंट नहीं होता है. यू कैन हैव अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, यू कैन हैव अ न्यू लैंड एंड बिल्डिंग दैट वी हैव. अच्छा, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, एवरीथिंग कैन बी एडजस्टेड चिल्ड्रन, राइट? अच्छा, तो याद रखना है आपको कि अगर फिक्स फैक्टर लिखा है बच्चों तो हमेशा शॉर्ट रन पीरियड होता है, और अगर सबके सब फैक्टर्स वेरिएबल है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन दैट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लॉन्ग रन पीरियड. ओके, yes, so that was some introductory part that we children have for the topic that we are going to discuss here. Okay, now 2 important laws children that we are going to study.
ये दो लॉज पढ़ोगे तो बच्चों आपको इस मॉड्यूल का ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस होता है। एक होता है बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और एक होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट वी हैव। बच्चों ये दोनों लॉज अच्छे से पढ़ के रखना, आपका पास होने का चांसेस 50% से बढ़ जाएगा। ओके, नाउ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, दिस इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन। क्या बोला? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन। अभी लॉ, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स करके भी बोला जाता है। अगर आपको लॉ अच्छे से समझना है तो आपको पढ़ने हैं पहले तीन कॉन्सेप्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट, देन वी हैव एवरेज प्रोडक्ट एंड देन वी हैव द मार्जिनल प्रोडक्ट। चलो, व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट एज इट इज रिप्रेजेंटेड एज टीपी, आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फैक्टरी इनपुट। आपने इमेजिन करना, मतलब आपके पास 10 एकड़ जमीन है और उसके ऊपर अगर आपने 50 वर्कर्स को एम्प्लॉय किया हुआ है, तो सब के सब फैक्टर्स ने मिलके कितना प्रोडक्शन किया, वो होता है हमारे लिए टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है चिल्ड्रन। ओके, नाउ टोटल प्रोडक्ट कैसे मिलता है बच्चों लोग यहाँ पे कि लाइक टोटल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फैक्टर इनपुट्स। दूसरा होता है बच्चों एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो आप क्या करते हो यहाँ पे, आपको टोटल प्रोडक्ट लेना है बच्चों। पहले कि आपने 100 क्विंटल चावल प्रोड्यूस किए, ओके, और उसके लिए आपने कितना 50 लेबर यूज किया हुआ बच्चों लोग। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या बोलता है कि अगर 100 क्विंटल्स ऑफ राइस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय 50 people, so each person has produced 2 quintals of those crops, right? हाँ, तो इसको बोलते हैं बच्चों एवरेज प्रोडक्ट बोला जाता है। ओके, और एक तीसरा आता है जिसको आप बोलोगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि टोटल प्रोडक्ट में कितना ऐड हुआ उसको बोला जाता है बच्चों लोग मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे कि 49 वर्कर्स थे और उन्होंने बच्चों लोग अज्यूम करना 98 क्विंटल राइस प्रोड्यूस किया था, और जैसे वो 100th वाला लेबर 50th वाला लेबर आ गया बच्चों, 49 का 50 हुआ, तो वहां पे बच्चों प्रोडक्शन 98 का 100 हो गया। तो जो एक्स्ट्रा एक लेबर आया ना बच्चों, उसने कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके दिया? 2 क्विंटल्स। तो चिल्ड्रन दैट एग्जैक्टली इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास दो फॉर्मूलाज आता है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पहले 98 प्रोडक्शन था, बाद में 100 हुआ, तो कितने से चेंज हुआ? 2, और लेबर बच्चों लोग 49 का 50 हुआ, कितने से चेंज हुआ? 1, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आएगा? 2 क्विंटल्स ऑफ राइस। तो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, द सेम थिंग चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू शो इट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। अच्छा, दिस टेबल चिल्ड्रन विच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, पहले कॉलम में क्या लिखा है देखो, फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर हम लोग कौन सा अज्यूम करें यहाँ पे? लैंड। दूसरे में लिखा है बच्चों वेरिएबल फैक्टर, दैट्स गोइंग टू बी लेबर। फिर यहाँ पे आता है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, लेट्स सी, लेट्स अज्यूम दिस चिल्ड्रन, 1 हेक्टेयर जमीन को हम लोग कॉमन रख रहे हैं यहाँ पे, 1 हेक्टेयर जमीन कॉमन रहेगा। अच्छा, फिर 1 हेक्टेयर जमीन पे जब पहला लेबर आ गया बच्चों लोग, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था? 10। अच्छा, तो उसका इंडिविजुअल प्रोडक्शन कितना था? 10 था। जैसे ही 2 वर्कर्स आते हैं बच्चों लोग, तो टोटल प्रोडक्शन हो जाता है 22। तो 10 में 12 ऐड हुआ, तभी जाके कितना फॉर्म हुआ है? 22। और एवरेज निकालने के लिए जाओगे बच्चों लोग, तो क्या करना है आपको? 22 डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 11। जैसे ही तीसरा लेबर आता है बच्चों लोग, तो प्रोडक्शन कितना हो जाता है? 36। तो 36 में से 22 जो पहले 2 जन का है उसको आप हटाओगे, तो तीसरे मजदूर ने बच्चों लोग कितना प्रोडक्शन किया है? 14 क्विंटल्स ऑफ राइस। चौथा वाला लेबर आ गया, और जैसे 4th वाला लेबर आता है बच्चों लोग, टोटल प्रोडक्शन होता है 48। 36 हटा दो उसमें से, तो 4th वाले लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया? 12। डिवाइड बाय 4 करोगे तो एवरेज प्रोडक्शन होता है 12। फिर बच्चों टोटल प्रोडक्शन आ गया 55, तो कितना ऐड हुआ है? 7। 6 वाला लेबर आ गया बच्चों, टोटल प्रोडक्शन 60 हो गया, 5 क्विंटल ऐड हो गया। 7th वाला आ गया बच्चों लोग, तो प्रोडक्शन 60 पे ही है।
बच्चों लोग जमीन उतना ही है, सिर्फ लेबर ऐड करने से प्रोडक्शन हमेशा बढ़ेगा नहीं। कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जमीन का कैपेसिटी खत्म होता है बच्चों लोग, तो प्रोडक्शन उतना ही रहेगा। और जबरदस्ती अगर आप वहां पे 8 वाला लेबर लेके आओगे तो आपका प्रोडक्शन बच्चों लोग 56 पे आएगा, मतलब प्रोडक्शन बच्चों लोग बढ़ने की बजाय एक्स्ट्रा होने की वजह से कम होता है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग होगा बच्चों लोग, और जमीन के कंपैरिजन में लोग ज्यादा हो गया, फिर लोगों की कंपैरिजन में जमीन ज्यादा हो गया। अच्छा, अभी हम लोग ये काम करते हैं, आप सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट वाला कॉलम ऑब्जर्व करना। कौन सा? मार्जिनल प्रोडक्ट वाला कॉलम। मार्जिनल प्रोडक्ट वाले कॉलम में इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि हर एक लेबर के साथ में प्रोडक्शन कैसे चेंज होता है, वो देखने की जरूरत है हम लोग को यहाँ पे। ओके, लेट्स ट्राई टू सी इट हियर। सो चिल्ड्रन, पहला लेबर आ गया, 10 चीजें प्रोड्यूस हुई, दूसरा आया 12 प्रोड्यूस, तीसरा आया 14 प्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ पे ये वाले जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, फर्स्ट स्टेज। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट स्टेज। एंड चिल्ड्रन, इट इज एक्चुअली रिफर टू एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या बोलोगे? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जैसे फोर्थ वाला लेबर आ गया, कितना हो गए? 12, 7, 5 और 0। तो आप इसको एक दूसरा नाम दे दोगे, यू कॉल दिस एज सेकंड स्टेज, और इसको नाम देंगे हम लोग बच्चों लोग स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और लास्ट वाले में बच्चों लोग कितना है? -4, दिस इज थर्ड स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। बच्चों लोग 2 एकड़ जमीन है, पहले वहां पे एक ही व्यक्ति काम कर रहा था, तो ज्यादा कुछ अच्छे से नहीं कर पाएगा क्योंकि सब कुछ उसको ही करना है, तो थोड़ा प्रोडक्शन। जैसे दूसरा आता है तो फिर लोग काम डिवाइड करके लेते हैं कि ये तू करना, ये मैं करता हूँ, और फिर प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तीसरा आता है और ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगा बच्चों लोग, और ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन। फोर्थ वाला आता है, लेकिन उसके बाद में होता है क्या बच्चों लोग पता है, क्योंकि जमीन का कैपेसिटी कम है तो धीरे धीरे डिमिनिश होता जाएगा। और एक ऐसा टाइम आता है जब जमीन का कैपेसिटी खत्म होता है। तो जैसे एक क्लासरूम में बच्चों लोग, आप स्टार्टिंग में 4 बच्चों को पढ़ा रहे, फिर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ज्यादा बच्चा और अच्छे से पढ़ा ज्यादा, क्लासरूम का कैपेसिटी 50 स्टूडेंट्स का है, 50 पे पहुंचने के बाद आप कितना भी अच्छा पढ़ाओ, ज्यादा बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि वहां पे ओवर क्राउडिंग हो गया बच्चों लोग, तो आप ठीक से सिखा नहीं पाओगे, आवाज होगा, रिजल्ट खराब होता है, तो कुछ अच्छे बच्चों को क्लासेस छोड़ के चले जाएंगे, मतलब डिमिनिशन भी स्टार्ट हो सकता है। यस, तो अपने पास 3 स्टेजेस आ गए बच्चों, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स। तो बच्चों, व्हाट आर द 3 स्टेजेस इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस? तो बोलने का इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स, राइट? अच्छा, अभी यहाँ पे बच्चों लोग आपको क्या करना है कि ये जो हमने टेबल बनाया है उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं अभी। व्हाट आर वी गोइंग टू प्रिपेयर चिल्ड्रन? डायग्राम। ओके, तो इसी के ऊपर ओवरलैप करके मैं आपको बता रहा हूं, टेबल को देख के आपको डायग्राम बनाना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइक एक्सिस किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ये होता है बच्चों अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या बताया बच्चों लोग? एक्स एक्सिस पे इनपुट दिखाते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या दिखाओगे? आउटपुट, प्रोडक्शन या फिर आउटपुट। तो सबसे पहला हम लोग को सिर्फ 3 कर्व्स बनाने हैं बच्चों लोग, टीपी, एपी और एमपी। क्या क्या बना? टीपी, एपी और एमपी। तो सबसे पहले टीपी को आप ऑब्जर्व करना जरूर बच्चों लोग। इमेजिन करना 1 हेक्टेयर जमीन में अगर आप 0 लेबर यूज करोगे तो प्रोडक्शन कितना आएगा? 0। दैट इज व्हाई टोटल प्रोडक्ट कर्व विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 से स्टार्ट होके बच्चों लोग यहाँ पे लिखते नहीं हम लोग, 10, फिर 22 हुआ, 36 होगा, मतलब पहले 10 से बड़ा, फिर 12 से बड़ा, फिर 14 से बड़ा। इट इंक्रीजेस एट ए इंक्रीजिंग रेट। फिर 48, 55, 60 बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने का रेट स्लो डाउन हो गया है। फिर बच्चों 60 और फिर बाद में 50 कांस्टेंट होके डिक्लाइन हो गया। तो बच्चों इसका कर्व का शेप किस तरीके से तैयार होता है देखो। सो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओरिजिन दैट इज 0, और फिर इसको जब आप ड्रॉ करते बच्चों तो इसको इनिशियली इंक्रीजेस एट ए इंक्रीजिंग रेट, ये पॉइंट तक ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ते जा रहा है। उसके बाद में आप क्या करोगे चिल्ड्रन? फ्रॉम हियर यू विल see that your curve is increasing but at a diminishing rate। फिर हाईएस्ट होके कांस्टेंट होता है, और फिर बच्चों ये डिक्लाइन भी होता है। और इस कर्व को आप नाम दे रहे हो टोटल प्रोडक्ट कर्व। चलो टोटल प्रोडक्ट कर्व तैयार हो गया। यस, नाउ चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द नेक्स्ट कर्व दैट वी हैव। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट कर्व चिल्ड्रन? दैट इज एपी कर्व। तो एपी कर्व को आप ऑब्जर्व करना जरा यहाँ पे, 10, फिर 11, 12, बड़ा बड़ा कांस्टेंट हुआ, हाईएस्ट होके फिर बाद में वापस से डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन ये 0 नहीं होता बच्चों लोग। तो ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? वापस से चिल्ड्रन इसको यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम 0 हियर।
यहां से स्टार्ट होके थोड़ी देर तक दोनों कॉमन रहेंगे, फिर ये ऐसे जाते हैं यहाँ पे, ये हाईएस्ट होके थोड़ा कांस्टेंट होगा 12 पे, एंड देन चिल्ड्रन, एक्सक्यूज मी प्लीज, सॉरी चिल्ड्रन, ओके। ये बच्चों लोग यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रोडक्ट, ये हाईएस्ट होता है इससे, यहाँ पे होके बच्चों लोग थोड़ा हाईएस्ट होके कांस्टेंट होगा, and then again it starts declining down children, but average product as I said कि like it never becomes zero। अब बच्चों लोग यहाँ पे प्लॉटिंग नहीं कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है, आप सिर्फ यहाँ पे बिहेवियर बता रहे हो। और जो तीसरा का आपको रेडी करना है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो पहले यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट 10 है, फिर 12, 14 बढ़ता गया, हाईएस्ट हुआ, फिर बाद में डिक्लाइन होता गया, जीरो होके नेगेटिव भी हो रहा है। तो आप बोले सर ये भी बढ़ के कम होता है, मतलब ये फॉल होके लाइक राइज होके फॉल होता है, एमपी भी राइज होके फॉल होता है। तो आप दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन कैसे करोगे, तो एक ऑब्जर्व करना बच्चों, ये 10 है 10 है, तो दोनों में स्टार्टिंग सेम रहेगा। फिर जैसे एपी बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है, लेकिन आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे एमपी थोड़ा फास्ट बढ़ता है, 12 पे 14 पे पहुंच गया, फिर ये कम होना चलोगे, ए भी कम हो गया। सो व्हेन एपी राइजेस एमपी विल राइज फास्टर देन एपी, व्हेन एपी फॉल्स एमपी विल फॉल फास्टर देन एपी। और इसकी वजह से बच्चों लोग जब मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट होता है तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं। क्या बोला देखो, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट हाईएस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। तो इसका डायग्राम बच्चों जो आपको रेडी करना है, इट एक्चुअली गोज लाइक दिस, कि यहां से बच्चों लोग जब आप ड्रॉ करोगे इसका डायग्राम, सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 0, फिर टेक इट लाइक दिस, ये हाईएस्ट लेके जाओगे यहाँ पे, ये हाईएस्ट होता है। इसको कब तक राइज करना बच्चों लोग, जब तक टोटल प्रोडक्ट बच्चों लोग इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है ना, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तब तक एमपी को बढ़ता रहे। उसके आगे आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर चिल्ड्रन, और फिर आप यहां से इसको डाउनवर्ड्स दिखाओगे। तो बच्चों लोग जब आप डाउनवर्ड दिखाने के लिए जाओगे तो इसको सिर्फ ध्यान रखना है, हाईएस्ट पॉइंट से क्रॉस करके ये नीचे ले तो जीरो होके नेगेटिव में भी जाते हैं। तो अभी इसको पढ़ के देखना जरा, क्या, when AP rises MP rises faster than AP, when AP falls then MP will fall faster than AP, and that is why MP curve always passes through the maximum point of AP। इसका मतलब चलो कि अगर AP बढ़ रहा है तो MP हमेशा उसके ऊपर होता है, अगर AP कम हो रहा है तो MP उसके नीचे रहेगा। लेकिन जब AP कांस्टेंट होता है बच्चों लोग, तो MP and AP are going to be equal। ओके, तो अभी आप क्या कर सकते हो बच्चों लोग, इस डायग्राम को आप 3 अलग अलग सेक्शंस में बांट सकते हो। जब तक बच्चों लोग आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको आप क्या नाम देते हो, यू कॉल इट एज द फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर ये डिक्लाइन होना चालू हो गया था तो ये जीरो होने तक आप क्या नाम दोगे, सेकेंड स्टेज, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न। और फिर आगे का जो है बच्चों लोग जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो उसको आप क्या नाम दोगे, थर्ड स्टेज, दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स। ओके, अच्छा, सो चिल्ड्रन व्हाट डू वी ऑब्जर्व हियर, ये एक्सप्लेनेशन में हम लोग बाद में लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या क्या हो रहा है जरा ऑब्जर्व करना बच्चों लोग। टीपी कर्व इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट देन एट अ डिमिनिशिंग रेट, AP is continuously rising till here, but it's gradually rising, gradually falling. MP rises faster than AP, it falls. बच्चों ये राइज हो रहा है, ये राइज हो रहा है। पहले स्टेज में कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है कि लाइक पहले स्टेज में कौन सा कर्व है जो राइज होके फॉल भी होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों लोग, MP कर्व। ओके, अभी आप बोले सर यहाँ पे MP कम हुआ है फिर भी आप उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों मानते हो, तो बोले का भले MP कम हो रहा है लेकिन AP अभी भी राइज हो रहा है, and that is actually it's an increasing rate. Second stage में बच्चों लोग ये TP कर्व ना, TP कर्व ये इंक्रीज होता है at a diminishing rate, AP कर्व फॉल हो रहा है ग्रेजुअली और MP कर्व फॉल होके जीरो भी हो रहा है। और तीसरे स्टेज में आप क्या बोलोगे, TP कर्व is falling, AP is falling but it is positive and MP curve has become negative. Children, that's how you get the explanation for this curve. तो अलग अलग स्टेजेस को हमने लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट यूनिट पे TP AP will be equal to MP, फिर TP rises at an increasing and diminishing rate, AP rises gradually and becomes maximum, MP rises becomes highest and also falls. फर्स्ट स्टेज खत्म कब होता है, जब MP और AP इक्वल होते हैं। तो so what happens in the second stage, TP will rise at a diminishing rate, it will become highest and constant, AP fall होता है gradually लेकिन पॉजिटिव, और MP का जो फास्ट फॉल होके क्या हो जाएगा, जीरो। सेकेंड स्टेज खत्म कब होता है, व्हेन MP becomes जीरो या फिर TP becomes
highest. And what happens in the third stage, children? Third stage में TP is going to decline. TP decline होगा. AP is going to fall, but positively, and MP is going to become negative. तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द स्टेज ऑफ ऑपरेशन, कौन सा स्टेज बेस्ट स्टेज होता है, तो बोलने का सेकेंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग है इसलिए नहीं बच्चों लोग, सेकेंड स्टेज, क्योंकि हम लोग जो प्रॉफिट होता है तो रुकते नहीं है, हम लोग लॉस होने से पहले रुक जाते. और फर्स्ट और थर्ड स्टेज के लिए अपने पास कुछ खास नाम है, दे कॉल्ड एज स्टेजेस ऑफ नॉनसेंस या फिर दे आर कॉल्ड एज स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी. सो दे आर नॉट फिजिबल फॉर प्रोडक्शन, चिल्ड्रन. ओके, सो दैट tells us the law of variable proportion, children. Now, after studying that law of variable proportions, we also come across one more law, children, which is actually similar and a kind of this law. अच्छा, इस law के कुछ assumptions भी यहाँ पे नोट किए हुए आप देख सकते हो. जो वेरिएबल फैक्टर है, हमने कौन सा वेरिएबल फैक्टर लिया था बच्चों, लेबर. अब उसको कैसे अज्यूम कर रहे हो, होमोजेनस. अच्छा, मतलब कुछ फैक्टर्स हम लोग चेंज कर सकते हैं वेरिएबल, और फिक्स फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर पाओगे. अच्छा, देयर इज पॉसिबिलिटी टू चेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. अच्छा, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी को आप कांस्टेंट अज्यूम करोगे. बच्चों, पहले टाइम पे एक आदमी अगर ट्रैक्टर यूज करता है और एक लेबर है, तो वहां पे बच्चों प्रोडक्शन अलग होता है. नेक्स्ट वाला आदमी सिर्फ लेबर यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा है, या फिर पुराना ट्रैक्टर यूज कर रहा है, तो प्रोडक्शन चेंज होगा. एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन द शॉर्ट टर्म. ओके, और एक जो मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या बोला था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. जब मार्जिनल प्रोडक्ट हाईएस्ट होता है तो उस पॉइंट को टीपी कर्व पे क्या बोला जाता है बच्चों लोग, इट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. डायग्राम में देख सकते हो आप जरा यहाँ पे. यस चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये वाला पॉइंट. Okay, acha, then next, children, here we try to understand one more concept, like TP और AP के बीच में कुछ relationship बताया देखो इन्होंने. When AP rises, MP rises faster. When AP falls, MP falls faster. MP को passes through the maximum point of AP. और AP जब highest होता है तो AP और MP क्या होता है, equal होते हैं बच्चों लोग. अभी इसी लॉ का एक दूसरा वर्जन आता है बच्चों लोग, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. ओके, ये भी बहुत कॉन्सेप्ट सिंपल है चिल्ड्रन, इफ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट हियर. ये वाला लॉ चिल्ड्रन, इट्स एप्लीकेबल इन द लॉन्ग रन. इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स. अच्छा, नाउ लेट मी शो यू हाउ टू मेक दिस टेबल चिल्ड्रन. कुछ बुक्स में ये टेबल नहीं दिया रहता, लेकिन अगर आप टेबल बनाओगे तो ये आसानी से समझ में आता है बच्चों लॉ. अच्छा, इसमें टोटल प्रोडक्ट वाला कॉलम है, मार्जिनल प्रोडक्ट वाला कॉलम. पहला लेबर आ गया, टोटल प्रोडक्ट 100, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी कितना है, 100. दूसरा लेबर आता है बच्चों, टोटल कितना होता है, 300, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ दूसरे का, 100, 200. फिर तीसरा लेबर आ गया बच्चों, तो प्रोडक्शन कितना हो गया, 600, कंट्रीब्यूशन कितना, 300. और फोर्थ वाला जो आता है उसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन 1000. मतलब हर एक जन है, पहले वाले ने 100 प्रोड्यूस किया है, दूसरे वाले ने 200, तीसरे वाले ने 300 और फोर्थ वाले ने 400. यहाँ पे पहला लेबर 100, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी 100 है. दूसरा आता है तो बच्चों टोटल 200 होता है, तो पहले का 100 हटाया तो दूसरे ने कितना प्रोड्यूस किया, 100. तीसरा आ गया बच्चों तो टोटल प्रोडक्शन 300, तो तीसरे वाले ने 100 प्रोड्यूस करके दिए. और फोर्थ वाला आता है तो चलो प्रोडक्शन 400 हुआ, तो फोर्थ वाले ने कंट्रीब्यूट कितना किया, 100. और एक होता है बच्चों डिक्रीजिंग रिटर्न्स. तो पहला लेबर आ गया और हमारा प्रोडक्शन 100 हुआ है, सेकंड वाला आया तो 180 हुआ, 3 जने मिलके 240 बनाए, चौथे वाले आए ने तो 280. तो पहले ने 100 बनाए थे, दूसरे ने 80 ऐड कर दिए, तीसरे ने 60 ऐड कर दिए और फोर्थ वाले ने 40. तो अभी आपको एक काम करना है बच्चों लोग, आप सिर्फ एमपी वाला कॉलम्स ऑब्जर्व करो. यहाँ पे 100, 200, 300, 400, इसलिए अपना नाम क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स. 100, 100, 100, 100, नाम क्या रहेगा, कांस्टेंट रिटर्न्स. डिक्रीजिंग रिटर्न्स पे बच्चों लोग आप क्या करोगे, यहाँ पे 100, 80, 60 और 40, राइट. अच्छा, तो चिल्ड्रन हियर
we try to understand that this particular law tells us about the increasing returns, constant returns and the decreasing returns. अच्छा, अब इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग तैयार करने के लिए जाते हैं, इफ यू जस्ट ट्राई टू मेक सम एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, तो क्या बोलने का देखो एक्सप्लेनेशन के लिए कि कैन से लाइक दिस, व्हेन इनपुट इज इंक्रीज इन अ गिवन प्रोपोर्शन एंड द आउटपुट इंक्रीजेस इन मोर देन प्रोपोर्शन. आप इनपुट को एक प्रोपोर्शन में बढ़ाते हो लेकिन आउटपुट उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है. व्हेन इनपुट इज इंक्रीज इन अ गिवन प्रोपोर्शन एंड द आउटपुट इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन. When input is increased in a given proportion and output increases in less than, so more than, same, less than. In simple terms, children, we can also say like this. इसको बोलने का और एक तरीका आता है, और वो तरीका है क्या? It says that when input is doubled, output will more than double. अगर input को आप double करते हो तो output double से थोड़ा ज्यादा होगा. ये देखो, ये 1 का 2 हुआ है ना बच्चों लोग, तो ये 100 का 200 नहीं हुआ, 300 हुआ, तो इसको मोर देन डबल बोलते हैं. इसको क्या बोलने का, व्हेन इनपुट इज डबल आउटपुट विल आल्सो डबल. ये 1 का 2, ये 100 का 200, और इसको बोलने का बच्चों व्हेन इनपुट इज डबल आउटपुट विल लेस देन डबल. 1 का 2 हुआ तो ये 100 का 200 नहीं हुआ, 180 हो गया बच्चों लोग, राइट. अच्छा, तो इधर लिखा है देखो ये सब कि व्हेन इनपुट इज डबल आउटपुट विल मोर देन डबल. इधर क्या लिखा है बच्चों लोग, व्हेन इनपुट इज डबल आउटपुट विल आल्सो डबल, और यहाँ पे लिखा है व्हेन इनपुट इज डबल आउटपुट विल लेस देन डबल. मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट. अगर आप इनपुट को 100% से बढ़ाओगे तो आउटपुट बच्चों 200% से बढ़ता है. या फिर इधर बच्चों प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट. आपने इनपुट को 100% से बढ़ाया तो आउटपुट भी 100% से बढ़ गया. प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट. आपने इनपुट को 100% से बढ़ाया, आउटपुट बच्चों सिर्फ 75% से बदल गया, राइट. अच्छा, तो इसको दिखाने के कुछ अलग अलग डायग्राम्स आते हैं. आई टेल यू विद मोर डायग्राम्स फॉर दिस, बट सिंपल डायग्राम. यहाँ पे बच्चों आपका रिटर्न्स क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. आपका रिटर्न्स क्या है बच्चों लोग, कांस्टेंट है, और ये रिटर्न्स क्या होते जा रहा है, आपका डिक्रीज होते जा रहा है. ओके, या फिर इन द कमिंग लेक्चर चिल्ड्रन व्हेन आई विल टीच यू अबाउट लाइक आइसोक्वांट कर्व्स क्या होते हैं, तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि लाइक इसको कुछ अलग डायग्राम्स भी दिखाए जाते हैं बच्चों लोग. एक ऐसा कर्व ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से आप एक एक्सपांशन पाथ दिखाते हो, और यहाँ से ना बच्चों लोग कुछ आइसोक्वांट कर्व्स ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे. ओके, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे गैप को धीरे धीरे कम करते हुए दिखाओगे. सेकेंड वाला जो है बच्चों लोग, वहां पे भी आप एक डायग्राम बनाते हो, आप अपने टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्व करोगे, जहां पे आपको ऐसा कांस्टेंट गैप रखना है जो बोलते हैं कि लाइक कांस्टेंट रिटर्न्स. और तीसरे वाले में बच्चों लोग आप और एक डायग्राम बना सकते हो जहां पे आप दिखाओगे कि इनके बीच में जो गैप है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है. तो इसको बोलते हैं बच्चों लोग इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिमिनिशिंग. इसको इंक्रीज, एक गैप कम हो रहा है लेकिन इसको इंक्रीजिंग क्यों बोलते हैं, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलता है, उतने ही इनपुट में उतना ही आउटपुट मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट में कम इनपुट मिलना चालू होता है. तो विथ लेस एंड लेस इनपुट वी गेट मोर एंड मोर आउटपुट, विथ सेम इनपुट वी आर गेटिंग सेम आउटपुट, एंड विथ मोर एंड मोर इनपुट वी आर गेटिंग लेस एंड लेस आउटपुट. तो इसी को आप बच्चों लोग अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो. तो दैट शुड बी अनदर लॉ दैट वी हैव स्टडीड हियर चिल्ड्रन टुडे. ओके, सो कॉम्प्रिहेंसिव बच्चों लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको आज पढ़ाई है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, और एक लेक्चर में मैं इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर लूंगा एंड देन विल बी गोइंग टुवर्ड्स 4th मॉड्यूल. बिल्कुल भी मिस नहीं करना है बच्चों लोग, अच्छे से पढ़ के रखना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. बाय एवरीवन एंड टेक केयर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.